हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे तेंदुलकर जी का कन्यादान। जो कन्यादान है उनसे विजय दुदुपंत तेंदुलकर जी ने लिखा है। 1928 टू 2008 की इनकी जर्नी रही है जीवन की। और ये जो कन्यादान है ये एक ड्रामा है जिसे मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं हम ड्रामा पे। Vijay Tendulkar's play Kanyadan is a journey from ignorance to experience. It is a ruthless criticism of the caste-ridden Indian society. Tendulkar highlights how all attempts of social amelioration prove fruitless in our progressive post-independent society. This play shows the predicament of Nath Diwalikar, the post-independent society. This play shows the protagonist of the drama when he confronts Hajar in real life in his effort to abolish caste system. Side by side with this Dalit and allied, this play also shows foolishness of a tourist who keeps his daughter's life and stake in the prove the supremacy of his theory. The play also hints at the pathetic condition of women in a patriarchal society. The play deals with complexity of human relationship. It contains a subtle critique of modern Indian society. Kanyadan explore the texture of modernity and social change in India through marriage between two people of different caste and backgrounds. Kanyadan alludes to the traditional Hindu custom of marriage in our society to give a marriageable daughter by one's guardian to an eligible young man who will give her safety and security in life. Kanyadan is about marriage between two persons belonging to different cultures, but to uplift Dalit community, such an intercaste marriage can never be a solution. The play opens in Nath Diwalikar house where Nath, an idealist Gandhi supporter and an active social worker, as well as an MLA in rebooking the irregular transport system of post-independent India. He is the father of Jyoti and Jayaprakash. They are also neutered by Nath idealistic philosophy. Nath's wife Seva is also an active social worker. When Jyoti expresses her desire to marry Arun Athabala, a Dalit boy whom she has known for 3 months, Nath's happy family gets a jolt. The family is divided into two opposite groups. The dramatist divides the drama in two acts. Act I is the representation of the Nath Diwalikar idealism and his ignorance. Act second shows the distorted result of his ignorance. Now Jyoti is no longer a joyous, happy married girl but an experienced older woman who bears the burden of marriage submissively. Jyoti's final breakdown reminds us of Louisa and Dickens' hard time, as in both cases their father's wrong philosophical attitude to life have destroyed their lives. Kanyadan is thus a deeply pessimistic play about the wrong philosophy of an infatual dreamer. Jyoti arrives her true womanhood, rejecting her father's wrong philosophy and accepting life as it is. Tendulkar has been awarded Saraswati Samman for this play, as this play exalts reality and nothing but reality, however crude it is. विजय तेंदुलकर का नाटक जो है कन्यादान एक यात्रा है जो हमें अज्ञानता से अनुभव की ओर ले जाती है। यह नाटक जाति प्रथा से ग्रसित भारतीय समाज की एक निष्ठुर व क्रूर समाज समीक्षा है। तेंदुलकर इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी समाज में किस प्रकार सामाजिक सुधार के सभी प्रयास निरर्थक ही सिद्ध हुए हैं। इसमें मुख्य पात्र नाथ दिवालिकर है जिसकी दशा का वर्णन किया जा गया है, जो जाति प्रथा का उन्मूलन करने के लिए आगे बढ़ता है और तब उसे अपनी निजी जीवन में ही परेशानियां भुगतनी पड़ती है। दलित और संभ्रांत की इस समस्या के साथ ही यह सिद्धांतवादी की मूर्खताओं को भी दर्शाता है, जो अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि बनाए रखने के लिए अपनी पुत्री के जीवन को ही संकट में ढकेल देता है। नाटक में इस पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दयनीय दशा का वास्तविक चित्रण किया गया है। नाटक का कथानक मानव संबंधों की जटिलता को दिखाता है। इसमें आधुनिक भारत के समाज की सूक्ष्म रूप से समीक्षा की गई है। नाटक कन्यादान में दो भिन्न जाति समूहों के लोगों के बीच वैवाहिक संबंधों को दर्शाया गया है, जो आधुनिक भारतीय समाज की सामाजिक बदलाव में परिलक्षित हो रहे हैं।
कन्यादान में परंपरागत हिंदू रीति रिवाज को ही दिखाया गया है, जहाँ पर विवाह योग्य कन्या को उसके संरक्षक द्वारा एक योग्य नवयुवक को सौंप दिया जाता है, जो आजीवन सुरक्षा देगा और उसकी देखभाल करेगा। कन्यादान में दो लोगों के विवाह को दिखाया गया है जो भिन्न भिन्न संस्कृतियों में पले बड़े हैं, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि दलितों के उत्थान के लिए इस प्रकार के अंतर जातीय विवाह कभी भी समाधान का कार्य नहीं करेंगे। नाटक का प्रथम प्रारंभ नाथ दिवालीकर के घर से होता है, जहां एक आदर्शवादी गांधी का समर्थक और समाज कार्यकर्ता के जो विधायक भी हैं, वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में परिवहन व्यवस्था की भर्त्सना कर रहा है। यह नाथ है जो ज्योति और जयप्रकाश का पिता है। इन दोनों का लालन पालन भी नाथ के आदर्श के दर्शन के अनुरूप ही हुआ है। नाथ की पत्नी शिवा भी सक्रिय समाज सेविका है। जब ज्योति स्वयं का विवाह अरुण अठावले के साथ करने की इच्छा जताती है, जो एक दलित है और पिछले 3 महीनों से वे एक दूसरे के परिचित हैं, तो नाथ के सुखी परिवार में भूचाल आ जाता है। उसका परिवार 2 विपरीत ध्रुवों में बंट जाता है। नाटककार ने नाटक के 2 अंकों में विभाजित किया है। अंक पहले में नाथ दिवालीकर के आदर्श और उसकी अज्ञानता को दर्शाया गया है। अंक 2 में उसकी अज्ञानता से उपजे दुष्परिणामों को रेखांकित किया गया है। अब ज्योति कोई सुखी वैवाहिक कन्या नहीं है, अपितु एक समझदार स्त्री है जो वैवाहिक जिम्मेदारियों का निर्वहन चुपचाप कर रही है। ज्योति की पूरी तरह से बर्बादी हमें डिकन्स के हार्ड टाइम्स की लुइसा का स्मरण करा देती है, क्योंकि इन दोनों उदाहरणों में पिताओं के जीवन संबंधी गलत दर्शन ने उनकी पुत्रियों के जीवन को बर्बाद कर दिया। इस प्रकार कन्यादान पूरी तरह से निराश व दुख से पूरित नाटक है, जो एक अवास्तविक अवास्तविक स्वप्न दृष्टा के गलत दर्शन को प्रकट करता है। ज्योति अपने नारित्य को समझ पाने में सफल होती है और अपने पिता के गलत जीवन दर्शन का तिरस्कार कर देती है। जीवन जिस रूप में उसे मिला है उसको वो उसी रूप में स्वीकार कर लेती है। इस नाटक के लिए विजय तेंदुलकर को सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि नाटक में वास्तविकता केवल वास्तविकता का ही प्रस्फुटन किया गया है, चाहे यह वास्तविकता कितनी ही निष्ठुर क्यों ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।